If you want to get closer Almighty Allah, then you have fear of Allah. اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ سے ضرور ڈرنا پڑے گا جی. اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ انسان اس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. ایوری ون آج جو ویڈیو کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہونے والی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی. تو نہ زیادہ دیری کرتے ہوئے ویڈیو کرتے ہیں فٹافٹ اسٹارٹ. اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کرتے ہیں پلیز سبسکرائب ایسی دھماکے دار ویڈیو دیکھنے کے لیے. چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. لائک ضرور کر دینا. سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل نعت رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے یہ, 3 لوگ سفر پر تھے, 3 دوست تھے, یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے. ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں, طوفانی بارش. اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی. غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں, ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی, ان کی قبر وہیں بننے والی. 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے, ختم ہے. لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا, اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا. تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں, پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی, ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا. ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف 1 روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا. میرے گھر کے کئی بچے تھے, بچے بھی بھوکے تھے, لیکن میری ماں بوڑھی تھی. تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا, اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا. کیا بات. اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف 1 روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا. ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی. بچے آ کر لپٹ گئے, کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا, بھوک کی شدت ہے. میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا. میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی. اس رات کو میں بھی بھوکا رہا, میرے بچے بھی بھوکے رہے. ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا. اے رب ذوالجلال, میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے, خالص تجھے راضی کرنے کے لیے. مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے. وہ دعا کر رہا تھا, چٹان تھوڑی کھسک گئی, اپنے آپ کھسک گئی, لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں. دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا. یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا. میرے عزیزوں, زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو, پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں, اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو. دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا. اس کی چچیری بہن تھی, چاچا کی بیٹی, عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے, ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے. ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا. شادی تو نہیں ہوئی تھی, نکاح بھی نہیں ہوا تھا. دونوں کھڑے ہوئے, گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے. ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے لگا اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے. مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں, خالص تیری رضا کی کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں
तेरी बारगाह में मेरा वो बचना पसंद है तो इस चट्टान को तू हटा दे। हदीस पाक में चट्टान और खसक गई। तीसरा शख्स था, वो सजदे में गिरा और कहने लगा, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तू बेहतर जानता है, मैं एक ज़मीन और जायदाद का मालिक था, मेरे पास कई मज़दूर काम किया करते थे, और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं महीना ख़त्म होते ही सारे मज़दूरों को उनकी तनख्वाह दे दिया करता। एक मज़दूर ऐसा है जो अपनी तनख्वाह लिए बगैर चला गया, एक मज़दूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, और उसकी तनख्वाह मैंने संभाल कर रखी और उससे एक बकरी ख़रीद लिया। मियाँ, लोग तो किसी की सैलरी हो दबा करके खा जाएंगे, और यह हदीस पाक में जिसके लिए कहा जा रहा है वो बंदा कहता है मैं उसकी पूरी तनख्वाह से एक बकरी ख़रीद लिया, बकरी को पालने लगा, वो मज़दूर आया नहीं, वो मज़दूर चला गया, महीनों चला गया, बकरी को मैं पालता रहा, बकरी ने बच्चे दी, बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। ए रब्बे ज़ुल जलाल, तूने इतनी बरकत दी कि उस एक बकरी से एक पूरा मैदान, कई हजार बकरियां भर गई, कई हजार बकरियां कई सालों के अंदर। वो उन बकरियों में न किसी को बेचता था न किसी को ज़बह करता था, सब बकरियां रखा। कई सालों के बाद अचानक वो मजदूर वापस आया और उसने आकर मुझसे कहा कि मालिक, मैं आपके यहाँ खिदमत करता था, आपको याद है कुछ सालों पहले मैंने अपनी तनख्वाह छोड़ दी थी, एक महीने की तनख्वाह नहीं लिया था। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसका हाथ पकड़ करके उन बकरियों के रेवड़ के पास ले गया और कहा ये तेरी तनख्वाह है, ये पूरी तेरी तनख्वाह है। उसने कहा मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो मालिक, मेरी तनख्वाह इतनी है कि इस जमाने में एक बकरी भी नहीं आ सकती। उसने कहा हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, लेकिन उस जमाने में एक बकरी खरीद ली मैंने, और उसी बकरी से अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इसमें मेरा एक भी हिस्सा नहीं, तेरी इन बकरियों का दूध तक मैंने नहीं पिया, सिर्फ और सिर्फ तेरे इंतजार में, और ये सारी बकरियां तू ले जा। और वह मजदूर खुशी खुशी अपने पूरे रेवड़ को, आज के जमाने के वो कई लाखों की बकरियां होंगी, वो मजदूर ले गया। अब ये बंदा कहता है ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने ये अमानत अगर संभाली थी तो खालिस तेरी रजा के लिए, मौला सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, वरना पैसे खा जाता तो कौन क्या कर लेता, वो मजदूर कौन सा वसूल कर लेता। कहता नहीं मुझे याद नहीं, अब मैं पहचानता भी नहीं, नहीं मौला मैंने तेरी रजा के लिए काम किया, अगर तुझे ये पसंद है तो ये चट्टान हटा दे। हदीस पाक में है उसने जैसी ये दुआ किया पूरी चट्टान हट गई, पूरी चट्टान खसक कर खत्म हो गई, इनका रास्ता साफ हुआ। पता ये चला हदीस पाक का ये मफहूम है। मेरे अजीजों, मैं अब आपके सामने अर्ज करता हूँ, ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें आज भी हम पर गिर रही हैं, मुसीबतों की चट्टानें, जुल्म की चट्टानें, लोगों के तानो तशनी और लोगों की गाली गलोच की चट्टानें। इन चट्टानों को खसकाने के लिए तुम्हारे पास इखलास वाली कोई नेकी मौजूद है। रब तबारक व तआला की बारगाह में कभी यूं अर्ज करते कि मौला मैंने खालिसतन एक रात तेरे लिए खड़े होकर पुकारा था जब सब लोग सो रहे थे, मैं सिर्फ तुझे राजी करने के लिए इबादत किया, मौला अगर तू राजी है तो इन फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम कर दे। हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो हम अर्ज कर सकें? आज दुआएं कहाँ नहीं हो रही हैं? दुआएं सब जगह हो रही हैं, इज्तिमाई दुआएं हो रही हैं, हर खुतबे में, हर नमाज में, हर जगह दुआएं होती हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों शायद वो इखलास से खाली हो गए हैं। एक बात याद रखना, हराम लुक़मे पेट में पड़े हों, हराम कमाई घर में पड़ी हो, तो हदीस पाक में उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती, कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती। और इन तमाम चीज़ों की तरफ कभी ख्याल भी ना करना और फिर ये कहना कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, इखलास नहीं होता। या तो फिर दुआ तो करते हैं, कमाई भी साफ है, हलाल है, लेकिन दुआ करने के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जल्दी से भागना है। हम तो देखते हैं ना, नमाज में हाथ उठाने में भी लोगों को शर्मिंदगी होने लगती है, कुछ तो मरे हुए हाथों के साथ दुआ कर रहे हैं, कुछ अंगूठे फोड़ रहे हैं दुआ में। तुम रब ताला की बारगाह में मांग रहे हो, इखलास अगर होता तो तुम्हें अपने की खबर नहीं होती। इखलास, दुआ भी तो रस्मी तौर पर मांग रहे हैं, इमाम अपनी दुआ कर रहा है, मुक्तदी अपने अंगूठे फोड़ रहे हैं, यही तो चल रहा है। कुछ उंगलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने हाथों को नीचे लटकाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, सहाबा कहते हैं कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी। खाने काबा के पास
हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं, मेरे अजीज़ों दुआ एक तरह से भीख मांगना है, और वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह में। और तुम्हारे अंदाज देखे जाते हैं, तुम्हारा इखलास भी देखा जाता है, मांगने में ही तुम सीरियस नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई हुई चीजें बोले जा रहे हो, यानी किसी ने याद करा दिया बस वही बोले जाओ। तुम्हारा दिल कब कह रहा है, दिल की हुजूरी के साथ कब कह रहे हो? कुछ चीजें खास हैं, सगीरा कबीरा हमारे माफ कर दे, उसको पता ही नहीं सगीरा कौन है कबीरा कौन है, ये तो रटी हुई चीजें बोले जा रहे हो ना। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा माफ कर दे। क्या है सगीरा कबीरा? कुछ पता नहीं, मौलवी साहब ने सिखाया था। दिल का जब हुजूर नहीं, दिल का इखलास ना हो तो फिर क्या चीज मांग रहे हो अल्लाह की बारगाह में? इखलास ये सबसे बड़ी ताकत है, अगर ये नहीं है तो इबादतों की जान ही नहीं है, इबादतों की जान ही नहीं है, इबादतों की जान इखलास है। वाह वाह, कुछ पता नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है भाई, जवाब नहीं है। अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान सब कुछ छोड़ता है। अल्लाह का डर ऐसा है कि इंसान जिस चीज़ से जितना डरता है ना उससे दूर भागता है। अगर तुम्हारे पास सांप आ जाए तो उससे तुम दूर भागोगे, कोई बंदूक लेके आपके सामने खड़ा हो जाए, आपके पास कुछ है नहीं तो आप भागोगे। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर ऐसा है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है उतना अल्लाह के करीब होता है। वाह 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 वाह। इफ यू वांट टू गेट क्लोजर ऑलमाइटी अल्लाह देन यू हैव फियर ऑफ अल्लाह। अगर अल्लाह के करीब होना है तो अल्लाह से जरूर डरना पड़ेगा जी। अल्लाह का डर ऐसा है कि इंसान उससे जितना डरता है उतना ही करीब होता है। बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह का डर, जितना अल्लाह से जितना डरोगे अल्लाह के उतने ही करीब होते जाओगे। और नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह से मुलाकात होगी, सजदा करोगे तो अल्लाह से मुलाकात होगी, और जब अल्लाह से मुलाकात होगी तो तुम्हारे सारे डर निकलते चले जाएंगे। बात है कि नहीं है? आज हमें वो बात है ही नहीं, हम खाली नाम के मुसलमान रह गए हैं जी, खाली काम के मुसलमान रह गए हैं जी। इसलिए मदनी में फरमाते हैं कि जिसमें न पाश शरीयत न खौफ खुदा, वो क्या रहा वो क्या गया, जो एक अल्लाह का डर हमारे दिलों को रोशन करता है और हमारा ईमान में इजाफा भी होता है और हमें बुलंद भी करता है, लोगों में मोहब्बत भी डालता है हमारे दिलों में कि हम अल्लाह से डरेंगे तो लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत बढ़ेगी, लोग हमसे इखलास से बातें करेंगे। क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को नवाजता है तो उसे बेशुमार इज्जत, बेशक अल्लाह खुद ही फरमाता है जी, वो तो जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक अल्लाह और हर चीज पर कादिर है। जी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह से डरना ही बेहतर है, क्योंकि अल्लाह से जब डरोगे तो आप गलत काम से बचोगे, हराम कमाई से बचोगे, नेक की राह पे चलोगे जी। और जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह का खौफ होगा तो आप किसी गंदे काम को हाथ भी नहीं लगाओगे। बेशक बेशक, आपको गलत काम से बिल्कुल एलर्जी होने लगेगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो आपकी हिम्मत नहीं हो सकती किसी काम करने की, गलत काम करने की, आपको ना किसी से रिश्वत लेने की या किसी को परेशान करने की, ना किसी को धमकाने की, कुछ ये नहीं। आपके अंदर अखलाक पैदा होंगे, क्योंकि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अखलाक सिखाए हैं हम उस पे कायम रहेंगे। बात है कि नहीं? और आप अच्छे ईमान बन के रहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जिसका दर्जा बुलंद करना चाहता है उसके सीनों को इस्लाम के लिए खोल देता है। हाँ। तो आप भी ऐसे बन के रहें कि अल्लाह तुम्हारे सीनों को खोल दे इस्लाम के लिए। बेशक बढ़िया कि हम औलिया कराम के नक्शे कदम पे और सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए हमेशा। और बाकी ये 3 बंदों के बारे में बात बताई थी, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने गंदे काम छोड़े थे, क्योंकि इनके दिल में खौफ था अल्लाह का कि अल्लाह हमें देख रहा है, कोई देख ना देखे लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है। और उन्होंने बकरी के चरवा वाले ने जो बकरी की उन्होंने जो मजदूर रहा करता था उनकी सैलरी ली, उससे एक बकरी खरीदी और बकरी के जितने भी बच्चे पैदा हुए जितनी बकरियों से उनने सारी बकरियां उसको नवाज दी, पाली होते और दी अपने, क्योंकि उसका हक बनता था उस पे, क्योंकि वो पैसे उसके थे, उसके पैसों से बनाया। आजकल का होता तो ये कहता बोले भाई इतने पैसे ले ले, तो बकरी तो मेरी होगी, बकरी मेरे भैया, फिर इसी एक बकरी देता वही बहुत जी था। जी उन्होंने सब तमाम बकरियों से दे दी। वाह वाह, इसे कहते हैं अल्लाह के प्यारे, अल्लाह का खौफ था जी जो उनके दिल में, तो उन्होंने दे दी थी। क्या बात है गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।